Students, good morning. Today we shall study some more formulae regarding trigonometric functions. Number one is here trigonometric ratios of 90 degree minus theta in terms of theta. First formula is sine 90 minus theta equals cos theta. Sine 90 minus theta means sine when the angle is in the first quadrant, because sine 90 minus theta means the angle falls in the first quadrant, what I have shown over here. This is x dash ox and this is y axis, as you already know. So I'll come to the formula once again. So the formula here is sine 90 minus theta is equal to cos theta. Cos 90 minus theta equals sine theta. Tan 90 minus theta equal to cot theta. And then here cosec 90 minus theta equal to sine theta. Sec 90 minus theta equal to cos theta. Cot 90 minus theta equal to tan theta. These are the angles which fall in the first quadrant. This is also first quadrant, because first quadrant is up to this space. From this greater than 0 and less than how much? Less than 90. Greater than 0 and less than 90. So this is less than 90. 90 minus theta means this falls in the first quadrant. If the angle falls in the first quadrant, then you can bring it to this shape. 90 minus theta will get cos theta. Cos 90 minus theta, sin theta. Tan 90 minus theta, cot theta. And one more thing you have to remember is that the first quadrant has sine positive and cos positive, because all signs are positive here, as I have told you earlier. All are positive here. So you can see the signs here. This one is positive, this one is positive, this is positive. Here this one is positive, this one is positive, and this one is positive. At 90 degrees, this change, sine changes to cos, cos changes to sine, tan changes to cot. Cosec changes to sine, sec to cos, and cot to tan, like this. So you have to remember this thing. Then the second one is there. Second is like this: trigonometric ratios of 90 plus theta in terms of theta. Now look, it was here, it was 90 minus, now it is 90 plus. 90 plus means in the second quadrant. I have shown here, this is theta, and this angle when falls in the second quadrant. Second quadrant means from 90 degree up to 180 degree, greater than 90 degree and less than 180 degree. When the angle falls in the second quadrant, then sine changes into cos, like we have done in case of sine 90 minus theta. यहाँ पर है cos 90 plus theta equals minus is there. This one minus sine theta. Tan 90 plus theta is minus cot theta. Same way, cosec will also change. Cosec 90 plus theta equal to sec theta. Sec 90 plus theta equal to minus cosec theta. Cot 90 plus theta equal to minus tan theta. Right? So one thing you have to remember, that in second quadrant the signs are sine is positive and cos is negative. So you have to put the signs here also. Suppose this one, sine 90 plus theta, I have written here the sign is positive there. So here because sine is in second quadrant, sine is positive. And cos, देखो cos में अगर आप देखेंगे तो cos 90 plus theta यहाँ पर माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ पर cos जो है वो नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर साइन इसकी नेगेटिव बनती है. फिर tan देखेंगे, tan 90 plus theta इक्वल टू माइनस cot theta, बिकॉज tan 90 plus theta इक्वल साइन थीटा, साइन 90 plus theta डिवाइड बाई cos 90 plus theta. एक की साइन माइनस है तो ये माइनस रहेगा. समझे? ये आपको याद रखना है. इतना आप मेहरबानी करेंगे, ये याद रखेंगे. कॉसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, क्योंकि कॉसेक और साइन की सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस ही होता है, लेकिन सेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस सेक माइनस कॉसेक थीटा. कॉट का हो गया टैन थीटा. ठीक है, यहाँ तक ठीक है. तो फिर आगे चलेंगे. साइन, इसका भी साइन इसके साथ ही देखो, यहाँ पर सेक जो है कॉस की साइन ले लेगा, कॉट जो है टैन की साइन ले लेगा. अगर ये माइनस तो ये भी माइनस है. ये मैंने आपको ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू अबाउट दीज थिंग्स. इसके बाद हम जाएंगे, अब ये तो था पहला सेक फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल होगा,
दूसरा था 90 प्लस मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब तीसरा देखिए, आप तीसरा फिर थोड़ा सा इसी किस्म का आता है 180 माइनस थीटा। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर थर्ड है हमारे पास, थर्ड फॉर्मूला सपोज जो आपको याद करनी है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 180 माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब 180 माइनस थीटा यहाँ पर आपको हर जगह मिलेगा लिखा हुआ, मैंने लिखा हुआ आई हैव रिटन साइन 180 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल्स माइनस कॉस थीटा। देखो सेकेंड क्वार्टर में अभी मैंने बोला था कॉस जो है वो माइनस होता है, tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो लेकिन यहाँ पर और उसमें क्या फ़र्क है, 90 वाले में साइन चेंज हुआ था कॉस में। अभी आप देखेंगे अगर आपको नज़र आ रहा है, यू कैन सी विविडली देयर दैट साइन हैज़ बीन चेंज्ड इनटू कॉस, कॉस इनटू साइन, tan इनटू कॉट। लेकिन यहाँ पर जो है अभी 180 माइनस थीटा में साइन साइन ही रहता है, साइन रिमेन्स साइन, कॉस रिमेन्स कॉस, tan रिमेन्स tan, but you have to see the signs in the relevant signs in the quadrant also. 180 माइनस थीटा मीन्स 180 से कम, 180 से कम तो इसी में पड़ेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। लेकिन साइंस भी देखनी है और साइन चेंज नहीं होगा, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, tan tan रहेगा। इसी तरह ये वाले भी कसिक जो है ऐसे ही रहेंगे, तो इसका आप खास ख्याल रखिएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर करते हैं तीसरा क्वाड्रेंट है हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट तो आ गया आपका। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा पहला 180 प्लस थीटा। अगर आप इफ़ यू कैन सी क्लियरली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 180 प्लस थीटा है यहाँ पर, 180 प्लस थीटा इन टर्म्स ऑफ, किस टर्म्स में यहाँ पर है, इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं वी राइट साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 पर चेंज नहीं होता है, साइन साइन रहता है, 180 पर चेंज नहीं होता है, कॉस कॉस ही रहता है, tan tan ही रहता है। देन यू हैव टू सी द साइंस ऑल्सो। अब देखो इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस ही होते हैं, यहाँ पर दोनों प्लस प्लस और इसका अपोजिट यहाँ पर माइनस माइनस ही होते हैं। और साइन देखिए, साइन भी माइनस है यहाँ पर मैंने लिखा, और कॉस का भी माइनस लिखा हुआ है, और tan का साइन डिवाइडेड बाई कॉस हो गया, वो तो प्लस ही आएगा, इसलिए उसका चेंज नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ पर कॉसेक का आएगा, सेक का आएगा और कॉट का आएगा। 180 प्लस थीटा मीन्स इन द थर्ड क्वाड्रेंट, 180 से ज़्यादा थर्ड क्वाड्रेंट। फिर साइंस लेनी है, और 180 पर तो चेंज नहीं होता है, 180 पर चेंज नहीं होता है, 180 पर कोई चेंज नहीं होता, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चेंज नहीं होता है, इट डजंट गेट चेंज। साइन रिमेन्स साइन, कॉस रिमेन्स कॉस, tan रिमेन्स tan। देन यू हैव टू सी द साइंस ऑफ द क्वाड्रेंट ऑल्सो, वो मैंने आपको समझा दिया। अब इससे आगे थोड़ा जाएंगे हम, अब करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा 360 से कम। अगर आप ऐसे घूमते जाएंगे, जहाँ पर मैंने शक्ल बनाई है, तो घूमते जाएंगे घूमते जाएंगे घूमते जाएंगे लाइक दिस, तो आपको पता चलेगा हम यहाँ से जाएंगे 0 स्टार्ट, फिर 90 स्टार्ट, फिर 180, फिर 270, फिर यहाँ तक आ गए। यहाँ तक तो 360 है, लेकिन थोड़ा कम के थीटा कम किया तो बन गया ये 360 माइनस थीटा। तो मतलब हो गया अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, इफ़ द एंगल फॉल्स इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, हो गया यहाँ लिखा हमने 360 माइनस थीटा, तो इसमें फॉल करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 360 पर भी चेंज नहीं होता है, साइन रिमेन साइन, कॉस रिमेन्स कॉस, tan रिमेन्स tan, cosec रिमेन्स cosec, sec रिमेन्स sec, cot रिमेन्स cot। बट यू हैव टू लुक फॉर द साइंस ऑल्सो, बिकॉज द साइंस इन द क्वाड्रेंट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हेयर यहाँ पर आपकी साइन जो है प्लस और माइनस है, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है, इसलिए साइन जो है वो क्या लेता है, यहाँ पर माइनस लिया है। कॉस जो है, कॉस ने पॉजिटिव लिया है, बिकॉज कॉस इज पॉजिटिव हियर। उसी तरह से tan जो है साइन बाय कॉस वो माइनस ले लेगा, तो बाकियों की साइन जो भी है इसी तरह से है। तो हो गए ये सारे फोर्थ क्वाड्रेंट तक। अब अगर फोर्थ क्वाड्रेंट से भी ज़्यादा हो कभी, व्हेन द एंगल एक्सीड्स 360 प्लस समथिंग, जब इसका एंगल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो तब हम क्या करते हैं, तो तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं 360 प्लस थीटा। अगर एंगल हो 360 से ज़्यादा, मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है दैट दिस एंगल टेक्स ए टर्न 360 टर्न, देन it moves a bit ahead, that is 360 plus theta will come out to be here. The signs are positive, means when the angle falls in the first quadrant once again, क्योंकि ये चक्कर लगाते लगाते इसमें आ गया, तो उस वक्त फॉर्मूला क्या रहती है, 360 पर भी चेंज नहीं होता है, इसका खास ख्याल रखेगा। 360 पर साइन रिमेन्स साइन, कॉस रिमेन्स कॉस,
tan remains tan। अब देखो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। इसी तरह से इसकी 3 और फार्मूला जो है वो आप कर पाओगे। तो कभी कभी देयर यू कैन सी देयर इज रिटन, सपोज यहाँ पर लिखा है साइन 360 plus 45. Yeah, we can write it like this. You already learned it that 360 equal to कितना 4 pi 4 into 90 4 into 2 pi not 4 pi plus 45 डिग्रीज ऐसे भी होता है बिकॉज दिस वन इज इन रेडियंस, ये 360 जो है ये डिग्रीज में है तो इसका मीनिंग सेम ही है। तो वो आपने सीखना है दैट यू हैव टू लर्न 2 पाई मीन्स 360, तो वो भी वही वैल्यू ले लेगा, यही ले, बिकॉज दिस वन इज इन डिग्रीज एंड दिस वन इज इन रेडियंस, दैट इज द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज द वैल्यू विल कम आउट टू बी सेम फॉर बोथ। और फिर देन साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि 2 पाई मीन्स 360 डिग्रीज, 360 डिग्रीज पाई मीन्स 180 एंड 2 पाई मीन्स 360 डिग्रीज। अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हियर, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल यूँ है साइन 360 प्लस 45 डिग्रीज इक्वल टू साइन 45, बिकॉज 360 को प्लस थोड़ा किया आपने, फॉर्मूला भी आपने ऊपर देखी, 360 को जब 360 प्लस हो कोई चीज़ उससे ज़्यादा तो साइन ही रहता है, साइन चेंज नहीं होता है, साइन ही रहता है, तो साइन ही रहेगा और ये थीटा हो गया, थीटा के बदले 45, इसकी वैल्यू यू नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, या इसके बदले इफ़ वी राइट साइन 2 पाई प्लस 45, सेम मीनिंग, अभी मैंने यहाँ पर समझा दिया, सेम मीनिंग, कोई डिफरेंस नहीं। अब इफ वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, इफ देयर इज साइन 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तब क्या करें, तो तब आप इसको चेंज कीजिएगा, देखेंगे ये कितना बनता है। तो यहाँ पर 720 को आप करेंगे 360 से डिवाइड, वहाँ पर कितना आएगा, सपोज मैंने आई हैव रिटन 4 पाई ईयर मीन्स 4 into 180, 4 zeros 720 हो गया 720 डिग्रीज, 720 डिग्रीज हो गया 4 पाई प्लस 45 डिग्री, दैट कम्स आउट टू बी 4 पाई। अब देखो यहाँ से once again you have to see it, this means pi, then means 2 pi, that means once again you turn 3 pi, then comes here 4 pi, then 4 pi plus something, 4 pi plus 45, 4 pi plus 45, तो मतलब है 2 चक्कर काट के ये फिर इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो 360 पर चेंज होता ही नहीं है, तो यहाँ पर भी ये चेंज नहीं होगा, तो साइन ही रहेगा, साइन 45 इक्वल टू 1/√2। अब I'll take this exercise number 3.2 is there and question number 6 is there. Find the value of sin 65. Sin 65, first of all you have to see where sin 65 lies. तो sin 65 देखेंगे बड़ा सा एंगल लगता है, तो हम देखेंगे 360 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है 40 डिग्रीज आपका और आता है 360 से करने पर, तो sin 65 मैंने लिखा sin 720 डिग्रीज प्लस 45 डिग्री, 720 हो गया 2 पाई रेडियंस के बराबर किया, एक प्लस 45, तो मैंने यहाँ पर इसलिए किया बिकॉज यू मस्ट लर्न बोथ दीज थिंग्स, डिग्रीज एंड रेडियंस ऑल्सो, यू विल अंडरस्टैंड देन इट बेटर। समटाइम्स यू कैन फेस डिग्रीज, समटाइम्स you can see in questions 2 pi is there, it means the same thing, not almost, it is the same thing, that means 2 pi plus something, 2 pi plus something means 360 plus something, that means 360 plus means it falls in the first quadrant, when it falls in the first quadrant that means फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे, तो साइन की वैल्यू जो होगी